Hello, students. Yesterday we started our fourth chapter in the Kingdom of Fools, which is written by a Kannada writer, A.K. Ramanujan. It is a Kannada folk tale, and it is believed that fools are so dangerous than a cruel person. Their foolishness can bring about major calamities. In this story, we read about a king and his minister. They both were idiots and they made a new rule in their city. They ordered that night will be converted into day and that day will be converted into night because they didn't want to run things like other kings in their kingdom. And they ordered that if anybody would not follow this rule, will be hung. So the people got feared because their king was so cruel. He could do that, and they started to do their work in night time. And one day, a king and his a guru and his disciple came into that city, and in the daytime, and they were very surprised when they saw that nobody was there in the city. It was looking deserted. The town was very beautiful, but nothing was open in that area. No activity was going on that in that area, and they both were very hungry. They wandered in the city throughout the day, and they waited till evening. When the evening broke, all the people, whole town woke up at once, and they started their daily routine works. Shops were opened, and farmers started tilling their fields and their day businesses. So they both were very surprised, but they came to know about the new rule of the king. So they went to a shop to purchase, to buy something to eat, to buy groceries. And when they went to the shop, they again got very surprised when they came to know that they would buy each and everything if it is a bunch of grapes, bananas, or a measure of rice in a single dudu, that is the currency, like a rupee. And they both were very surprised and happy also because they got all that material in very cheap rates, and they ate to fill their stomach. But the guru was very wise person. He said to his disciple that this city is not for us. This is the city of fools, and it is not good to stay here for long because this work, this rule will not uh, go long in this city. And he said to his disciple to leave that place as soon as possible. But the disciple was very greedy person. He didn't want to leave that place, and he denied to go anywhere to his disciple, to his guru. But the guru said him that if you don't want to come with me, you can, but I'm going from here, and you don't know what would be happen to you next in this city. And the guru and the disciple started eating many fatty things, and he became like a street bull in a few days. And there one incident happened in that city. The incident was that a thief burgled in a house, rich merchant's house, but when he was coming out through the wall fell on him, and he got died on the spot. And the brother of the thief went to the king for taking justice, and he said that my brother was doing his ancient business, and during this weak wall fell on him and he got died. And it now king should compensate for the tragedy, and king should punish the real culprit. And king said that now the real culprit is the rich merchant whose wall was that, and he was called in the court. When the merchant was called in the court, merchant said that, sir, I am not the real culprit because
I didn't make this wall and I didn't know that the wall is so weak. This is the fault of a bricklayer who made this wall. And I know the person where he lives. Now the bricklayer was called in the court, but the bricklayer also said that I am not the real culprit. The real culprit is the girl who was moving in and to and fro in the street when I was working on the wall. So I got disturbed by his anklets jingling, and I couldn't do my work well. So she is the culprit for that. And now the girl is called. Now he has become an old lady. So now the lady is called in the court. What happened then? Now I am going to read this thoroughly. You are right. The case deepens. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. केस जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. वी मस्ट लुक इनटू इट. हमें इसमें जो है गहराई तक जाना होगा. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना, जस्टिस करना जो है बहुत ही मुश्किल टास्क है. लेट्स गेट दैट डांसर. आओ हम उस डांसर को बुलाते हैं. वेयर एवर शी इज़, जहाँ कहीं भी है. द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, came trembling to the court. Now the dancing girl, now she has become an old woman, came trembling. Trembling means shivering. कपकपाती हुई जो है वो कोर्ट में आती है. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Now the king asked that old woman that Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम उस गली में से जो है कई साल पहले तुमने राउंड लगाए थे जब ये बेचारा आदमी जो है उस दीवार को बना रहा था? क्या तुमने इसको देखा था? Then the lady replied, Yes, my lord, I remember it very well. मुझे ये अच्छे तरीके से ध्यान है. So you did walk up and down with your anklets jingling. तो इसका मतलब तुम जो है उस गली में से घूम रही थी अपनी पायल जो है खनकाती हुई. You were young and you distracted him. You were young that time and you diverted the mind of this man. So he made a bad wall. और इसीलिए इसने जो है एक जो है कमज़ोर दीवार बनाई. Now what the dancer says, It has fallen on a poor burglar and killed him. अब ये जो बेचारे एक सेंध लगाने वाले पर, चोर पर गिर गई और उसकी वजह से मर गया. You have killed an innocent man. You will have to be punished. Now the king says to the lady that you have killed that innocent man and you will have to be punished. और तुम्हें जो है इसके लिए दंडित किया जाएगा. She thought for a minute and said, now she was very worried about it. And she thought for some time and she said to the king, My lord, wait, इंतज़ार कीजिए. I know now why I was walking up and down that street. मुझे अब पता ध्यान आ गया है कि मैं उस गली में क्यों घूम रही थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने कुछ जो है सोना जो है सुनार को दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए. He was a lazy scoundrel. और वो जो है बहुत ही सुस्त आदमी है, दुष्ट आदमी है, सुस्त और दुष्ट. He made so many excuses, said he would give now and he would give it then. उसने इतने ज़्यादा बहाने बनाए और मुझे हर बार यही कहता कि मैं तुम्हें अब दूंगा, तब दूंगा, and so on all day. और इसलिए मुझे पूरा दिन घुमाता रहा. He made me walk up and down to his house a dozen times. और उसने जो है मुझे अपने घर पर दर्जनों बार जो है इसी तरह से बहाने बना करके बुलाया, घुमाता रहा. That was when this bricklayer saw me. और ये वो समय था जब ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था. It's not my fault, my lord. It's the damn goldsmith's fault. ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो उस दुष्ट सुनार का फॉल्ट है. Poor thing, she is absolutely right. Now the king says that बहुत गलत हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है. Thought the king, राजा सोचता है. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. आप जो क्या कहता है कि हम जो है इस तथ्य को सामने रखते हैं, हमें जो है एविडेंस मिल गया है, उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, तो अब हमने जो है रियल कल्प्रिट को ढूंढ लिया है.
गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, उस जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ है उसको पकड़ के लाओ एट वंस, एक फटाफट। द किंग्स bailiff सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो किंग के bailiff से जो उसके लॉ ऑफिसर्स थे वो उसको जो है सर्च करने के लिए जाते हैं राजा की आज्ञा का पालन करके। एंड ही वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। दैट टाइम द गोल्ड स्मिथ वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब उसको पता चल गया था कि अब वो जो है रियल कल्प्रिट बना दिया गया है, तो उसने अपनी कहानी तैयार कर ली थी। My lord, he said, I'm a poor goldsmith। मैं एक बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ। It's true, I made the dancer come many times to my door। ये सच बात है कि मैंने इस डांसर को जो है अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया था अपने घर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसको बहाने बनाए। बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। क्योंकि मैं जो है इसकी ज्वेलरी नहीं तैयार कर पाया था। किससे पहले नहीं कर सका था? क्योंकि मेरे को एक रिच मर्चेंट ने पहले से ऑर्डर दे रखा था, और जब तक मैं उसका काम पूरा नहीं कर लेता, मैं इसका जो है ज्वेलरी नहीं बना सकता था। बट मैंने इसके लिए जो है बहुत सारे एक्सक्यूजेज़ जो है इसके सामने रखे और इसको बार बार अपने घर तक बुलाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। और जो रिच मर्चेंट था उनके घर में शादी थी और वो जो है ज्वेलरी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और आपको तो पता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। वो कौन रिच मर्चेंट है जिसने तुम्हें जो है इसकी ज्वेलरी बनाने का काम नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन। और इसको जो है गली में इधर उधर घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर। और जिसकी वजह से ये जो मिस्त्री है इसका ध्यान डाइवर्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल। और उसने जो है इतनी गंदी दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। जो अब एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई है और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम। क्या तुम उसका नाम मुझे बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब गोल्ड स्मिथ ने जो है उस व्यापारी का नाम बताया और वो और कोई नहीं, वही व्यापारी था जिसकी वो दीवार थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जो है न्याय घूम करके उसी जगह पर आ गया था जहाँ से स्टार्ट हुआ था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब राजा सोचता और व्यापारी को जो है वापस बुलाता है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." अब जो है ये मर्चेंट बेचारा रोते हुए जो है चिल्लाते हुए कोर्ट में आता है, दरबार में आता है और कहता है कि इट्स नॉट मी who ordered for the jewelry. He was my father who ordered the jewelry and he is dead now, so I am innocent। और इसीलिए मैं जो है कल्प्रिट नहीं हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। लेकिन राजा जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है इसके बारे में और जो है डिसीजन लेता है। एज ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये बात सच है कि जो रियल मर्डरर है वो तुम्हारे फादर हैं। ही इज़ डेड। वो अब मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन किसी को तो जो है उनकी जगह पे दंड दिया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। तुमने क्या किया है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी को उनके बाद जो है इनहेरिट किया है, संपत्ति को जो है प्राप्त किया है, तो उनके जो पाप हैं वो भी तुम्हें संपत्ति में मिले हैं। आई न्यू एट वंस। तुमने विरासत में जो है तुम्हें उनकी संपत्ति मिली है, तो उसके साथ साथ तुम्हें उनके पाप भी मिले हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मुझे पहले ही पता चल गया था जब मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र डाली थी कि तुम ही जो है इस अपराध की जड़ हो और तुम्हें मरना ही चाहिए इसके लिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड ready for the execution, and now the king ordered to his soldiers to make a stake
एक जो है फंदा बनाने के लिए उनको ऑर्डर दिया, और ताकि जो है उसको फांसी पर लटकाया जा सके। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। अब सर्वेंट्स ने फटाफट जो है एक स्टेक बनाया, एक जो है लकड़ी का एक लकड़ी का जो है स्टेक तैयार किया गया। और ये स्टेक किसके लिए था? और ये जो क्रिमिनल को दंड देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। इट occurred टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट was somehow too thin to be properly executed on the stake। और ये जो है मिनिस्टर ने जब ये देखा कि जो रिच मर्चेंट है वो थोड़ा पतला है, ज़्यादा पतला है, क्योंकि जो स्टेक तैयार किया गया था उसमें जो है उसका सिर बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब जो है ये किंग को अपील करता है कि ये जो है आदमी इस पर फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि स्टेक जो है इसके साइज़ का नहीं है। अब जो है राजा फिर से चिंतित हो जाता है कि अब हम किसको दंड दें। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat man, fat enough to fit the stake। अब वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो जो है क्या कहता है कि अब हमें, राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड, उनको किसकी ज़रूरत है? एक ऐसे मोटे आदमी की ज़रूरत है जो कि स्टेक में फिट आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। और फिर जो है सर्वेंट्स को तभी तुरंत जो है शहर में भेजा जाता है, ताकि वो जो है एक ऐसे आदमी को ढूंढे जो इस स्टेक पर फिट आए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नज़र जो है किसके ऊपर पड़ती है? उस शिष्य के ऊपर पड़ती है जिसने जो है कई महीने से अपने आप को बनानाज, राइस, व्हीट और घी जो है खिला खिला करके बहुत ज़्यादा मोटा, तंदुरुस्त बना दिया था। What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi. Now the disciple says to the servants that what I have done। मैंने क्या गलत किया है? क्या गलत किया है? मैं तो बहुत शरीफ हूँ और मैं सन्यासी भी हूँ। वो चिल्लाता है। That may be true, ये सच होगा। But it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake। लेकिन ये जो है शाही फरमान है कि हमें एक ऐसे तंदुरुस्त आदमी को ढूंढना है जो स्टेक पर बिल्कुल फिट आ सके। दे सैड, वो कहते हैं। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको जो है फांसी लगाने की जगह पर ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, तभी उसको जो है अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आते हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ जो है क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु के लिए इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, और वो दिल ही दिल में अपने गुरु से प्रे करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उसकी जो है पुकार को सुनने के लिए जो है उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं मेरी पुकार को सुने, मेरी रिक्वेस्ट को सुने। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द गुरु हैड सम मैजिकल पावर्स, सो ही सो एवरीथिंग इन अ विजन। उन्होंने जो है दूरदृष्टि से सब चीज़ों का पता लगा लिया। विजन क्या है? दूरदृष्टि। ही हैड मैजिकल पावर्स, उनके पास जो है कुछ जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक का देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो जो है फ्यूचर भी देख सकते थे जैसे वो प्रेजेंट और पास्ट को जानते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वो एकदम से जो है अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को बचाने के लिए आ जाते हैं। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को जो है एक ऐसे स्क्रैप, एक ऐसी ट्रैप में डाल दिया था, जाल में फंसा दिया था। किसकी वजह से? खाने से, प्यार की वजह से। क्योंकि when the guru was saying to him to leave that place, he denied to go somewhere else. He said that I will stay here because there
I will eat here I will eat cheap food, and that cheap food made brought him in such a situation. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही जितनी जल्दी जो है गुरु वहाँ पर पहुँचा, वो जो है डिसाइपल को, अपने शिष्य को डांटना शुरू कर देते हैं और उसके कान में जो कुछ विस्पर करते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? और फिर वो जो है राजा के पास जाते हैं और उसको संबोधित करते हुए बोलते हैं, अब बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान होता है, एक गुरु महान होता है या उसका शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? नाउ द किंग रिप्लाइड, इट्स द गुरु हु इज़ ग्रेटर, and I have no doubt about it, and but why did you ask such a question? अब वो क्या कहता है कि एक गुरु जो है हमेशा ही महान होता है, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो इसीलिए पहले मुझे जो है फांसी पर लटकाइए, मेरे शिष्य को जो है मेरे बाद फांसी दीजिए. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जो है डिसाइपल गुरु की ऐसी बातें सुनता है तो वो सारा मामला समझ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि पहले मुझे फांसी दो, तुम मुझे पहले यहाँ पर लेके आए थे और इसीलिए जो है पहले फांसी मुझे दो, इनको नहीं. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और शिष्य की एक जो है लड़ाई शुरू हो जाती है कि पहले फांसी पर कौन जाएगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर. नाउ द किंग गॉट कन्फ्यूज्ड बाय देयर बिहेवियर. उनके बिहेवियर से जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है. ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? नाउ द किंग आस्क्ड द गुरु, व्हाई डिड ही वांटेड टू डाई, सॉरी, व्हाई डिड ही वांट टू डाई? वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फिट मैन फॉर द स्टेक. हमने उसको चूज़ किया क्योंकि हमें जो है एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी स्टेक के लिए. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. But the Guru says to King that you should not ask me such type of questions. I want to get died first. I want to get die first. Why? There is some mystery here. कुछ तो रहस्य है. As a wise man, you must make me understand. And the king says to the Guru that you should make me understand about that mystery. What secret you know about the stake? ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या रहस्य है जो तुम स्टेक के बारे में जानते हो और तुम हमें नहीं बता रहे हो? तो सबसे पहले हमें जो है उस सीक्रेट के बारे में बताओ. Will you promise to put me to death if I tell you? asked the Guru. Now the Guru said, क्या आप प्रॉमिस करोगे कि अगर मैं आपको ये बात बता दूंगा तो पहले मृत्यु मुझे दोगे? द किंग गेव हिम द सॉलम वर्ड. अब राजा जो है उनको पवित्र वचन दे देता है. द गुरु टोक हिम असाइड. गुरु उनको जो है एक साइड में लेकर के जाते हैं. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जो उसके सर्वेंट्स थे उनसे दूर, ताकि वो सुन ना सकें. एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके और बड़बड़ाते हैं, धीमी आवाज़ में बोलते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या तुम जानते हो कि हम दोनों जो है पहले अभी के अभी क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम हर जगह घूमे हैं इस संसार में, लेकिन हमें आज तक ऐसा शहर और ऐसा राजा देखने को नहीं मिला. दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो स्टेक है, ये किसका स्टेक है? न्याय के देवता का, न्याय के भगवान का. इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर आज से पहले किसी क्रिमिनल को फांसी नहीं लगाई गई है. हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. और जो कोई भी इस पर पहली बार फांसी पर लगाया जाएगा वो जो है अगले जन्म में इस राज्य का राजा बन करके जन्म लेगा.
एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो जो है इस राज्य का, इस देश का जो है मंत्री बनेगा अगले जन्म में। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, हम अपनी इस सन्यासी जीवन से थक चुके हैं। सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ मीन्स सन्यासी जीवन, एसेटिक साधुओं वाला जीवन जो है, इससे हम थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम भी जो है एक राजा और मंत्री का जीवन कुछ समय के लिए जिएं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने वचन पर आप रहें माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और हमें मृत्युदंड दीजिए, और ध्यान रखना कि पहले मुझे जो है फांसी लगानी है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा जो है गहरी सोच में पड़ जाता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू सम वन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो जो है किसी को अपना जो है राज्य खोना नहीं चाहता था अपने दूसरी ज़िंदगी में भी। ही नीडेड टाइम, उसने समय लिया। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, और उसने ऑर्डर किया कि ये जो फांसी है ये कल के लिए टाल दी जाती है। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से जो है सीक्रेटली जो है बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अपने साम्राज्य जो है अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्स एंड वी विल बी रिबोर्न एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, चलो हम ही जो है स्टेक पर चलते हैं और अगले जन्म में हम ही जो है राजा और मंत्री के तौर पर जन्म लेंगे। होली मैन डोंट टेल लाइज, साधु लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इससे जो है मिनिस्टर एग्री करता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, अब वो जो है एग्जीक्यूशनर्स को बुलाते हैं। राजा जो है किसको बुलाता है, जो फांसी पर लटकाने वाले थे, जो सर्वेंट्स थे उनको बुलाता है और उनको कहता है कि हम आज रात को ही जो है क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first, जो पहली बार तुम्हारे पास आता है उसको पहले फांसी देना। Then do the same to the second man, और फिर जो है दूसरे आदमी के साथ में ऐसा ही करना। Those are my orders, और ये मेरे ऑर्डर हैं। Don't make any mistake, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison, और उसी रात जो है राजा और उसके मंत्री जो है सीक्रेटली चुप करके जो है जेल में चले जाते हैं। Released the guru and his disciple, और उस गुरु को और उसके शिष्य को छोड़ देते हैं। Disguised themselves as the two, और अपना वेश बदल लेते हैं। Disguised means अपने आप को जो है उन दो के जैसा बना लेते हैं, गुरु और शिष्य के जैसा। And as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed, और पहले से ही बनाई हुई नीति के तहत उनके जो लॉयल सर्वेंट थे उनको ले करके जाते हैं और प्रॉम्प्टली जो उनको उसी टाइम पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। So like that this they both got dead. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उनकी बॉडीज़ को जो है स्टेक से नीचे उतारा गया कौवों और वल्चर्स गिद्धों को खिलाने के लिए, लोग बड़े दुखी हुए। दे सो बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने जो है राजा और मंत्री दोनों की डेड बॉडीज़ को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, द पीपल ऑफ द सिटी वर इन कन्फ्यूजन, उस शहर के सभी लोग जो है बड़े कन्फ्यूजन में थे कि ये कैसे हुआ। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात वो दुख मनाते रहे और अपने राज्य का जो है भविष्य उसके बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कोट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और कुछ लोगों ने अचानक से जो है विचार लगाया गुरु और शिष्य के बारे में, और जब वो उस शहर को जो है बिना बताए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तभी उनको जो है जा कर के उनके पास उनको पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे भी उसकी बात से एग्री करते हैं। दे बैग द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और वो जो है रिक्वेस्ट करते हैं गुरु और उसके शिष्य से उनका राजा और मंत्री बनने के लिए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, और जो है
शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बट इट लुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, और लेकिन जो है गुरु को मनाने के में जो है काफ़ी समय लग गया. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और अंत में वो जो है तैयार हो जाते हैं उस फुलिश किंग और उसके सिली मिनिस्टर की जगह लेने के लिए, और एक शर्त पर वो तैयार होते हैं कि उनके राजा बनते ही जो है सारे पुराने लॉज को चेंज कर दिया जाएगा. फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे. और तभी से जो है रात दोबारा से रात बन गई और दिन को जो है दोबारा से दिन बना दिया गया. इट मीन्स कि जो दिन के काम थे वो दिन में ही किए जाने लगे और जो रात के काम थे वो रात में ही किए जाते थे. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और एक डुडू में तुम्हें जो है कुछ नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. अब ये जो है दूसरे राज्यों की तरह ये राज्य भी जो है स्मूथली वर्क करेगा. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड वी went through the story of a idiot king and his silly minister, how they both were trapped by the guru in his words, and they got died in the ending because they wanted to take their reputation back in the next life also as a king and the minister. So it is all about this chapter. Thank you.